First question is asking about the radioactive decay constant. So we know that radioactive decay constant is defined as probability of decay per unit time. In the second equation, they have asked us that the decay constant is related to half-life. We know we have an expression A is equals to A naught e to the power of -2. A over A naught would be equals to E minus lambda T by 2. If we are considering it to be a half-life, so A would also be considered as a half one. Let me rewrite this equation. For one half-life, A would be equals to half of A naught, which is the original uh, uh, value. ठीक है? So जी जी A naught by 2 equals to A naught to the power of E lambda 2. So 1 by 2 equals to E to the power of minus lambda 2. Log 2 is equals to minus lambda t. And it's 1 by 2. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? बल्कि यहीं से इसको रीअरेंज कर लेते हैं कि 1 by 2 would be equals to 2 and पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव कर लेते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा दोनों का. नाउ टेक लॉग एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू लेमडा टी 1 by 2. हाफ लाइफ यहाँ पे साथ साथ लिखते रहने को हम हाफ लाइफ के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं. And this is the equation because we know that log E is equals to 1. That's how we're going to get this equation. Clear? जी अब इस तरह के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स रिपीट होंगे, सो वी हैव टू कीप दैट इन आवर माइंड. देन उन्होंने सबसे पहले हम लोगों से पूछा हुआ है कि we have to find out the volume of the water in the container. Initial activity is 3. Entrance power 4 becquerel. Half-life is 15 hours for a stable isotope. Solution 36 hours. Sample of volume 5 centimeter taken from the container is found to have an activity of 1.2 becquerel. ठीक है. अब उसने हमें दो टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं. And after a time period of 36 hours, the activity left is 1.2 becquerels. Assuming that the solution of the reactive isotope is distributed uniformly, we need to go with that. अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एक्टिविटी किसकी इक्वल होती है? lambda n A naught e to the power of lambda 2 into time, number of half lives. ठीक है. As we have given 2 half lives, so 36 divided by 15, right? How much this will give us? 36 divided by 15 is 2.4. 2.4 तो let's put the values. Initial activity हमारे पास कितनी है? 3.8 into 10 to the power 4 becquerel, e to the power of log 2, and 36 over 15. So e to the power of minus log natural log 2 times 36 over 15 times 3.8 into 10 to the power 4 is equals to 7199. So activity after this time is 7199, which could be rounded off to 7200 becquerel. Are we clear up till here? जी अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था तो हम रेशियो लगा देंगे.
हमारे पास दो रेशो गिवन है कि when the volume was 5 centimeter cube, the ratio was 70, so the count rate was this, and we need to find out the volume when the activity is 7200 becquerel. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7200 divided by 5 multiply by, sorry, 7200 times 5, Times 5. 7200 times 5 divided by 1.2 equals to the volume. This would give us an answer of 3 into 10 raised to power 4 centimeter cube. जी सही है. Moving on to the next one, ये हमने बहुत दफा किया हुआ है, ये टेबल हमारी बुक में भी गिवन है. यूरेनियम हमारे पास सबसे कहाँ पे आएगा, उन्होंने बोला यूरेनियम को बॉटम पे. मार्क करेंगे यू से, बेरियम उससे पीछे आएगा, और क्रिप्टॉन बिल्कुल पीक के साथ आएगा हमारे पास. हाँ ये सही है. तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मेरे पास क्रिप्टॉन आ जाएगा, यहाँ पे मेरे अच्छा मैं पास थोड़ा सा आगे करके. बेरियम आ जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा यूरेनियम. सर मैंने पीक के बाद क्रिप्टॉन से शुरू किया है और फिर आगे बाकी जैसे थे. ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा आगे ले जाए, हमारे पास तो बुक में भी डायग्राम बनी हुई है इसकी, चलो ठीक है. बल्कि एक दफा उसको देख भी लेते हैं फॉर कि masses जब फाइंड आउट करने हैं तो उनसे मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना. तो here you could see कि उसने न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है उसके, as for carbon it's 6 proton and 6 neutrons. तो ये टोटल हमारे पास इसकी आ गया इक्वेशन, उसने हमें फिगर 29.3, ठीक है, ये दी हुई है. एंड मास ऑफ नहीं तो सिस्टम, ओवरऑल मैथ इफेक्ट में भी सब कुछ फैक्टर इन करते हैं. वो तो फिर आप माइनस करके मास इफेक्ट फाइंड आउट करोगे ना, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स का. रिएक्टेंट्स को इनिशियली विद हमने इनिशियली देखा तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को उनके रिस्पेक्टिव मास से मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी निकली, 20. वेरएस कार्बन का जो न्यूक्लियस का मास आ रहा है इट्स कमिंग आउट टू बी 19.926. तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करके वहां से मास इफेक्ट निकालेंगे, और वहां से फिर हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे कि कितना जो मास इफेक्ट आया उसमें से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है हमारे पास. देखो ना, मास इफेक्ट फाइंड आउट करके एमसी स्क्वायर की इक्वेशन में पुट करके एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करके दैट दिस अमाउंट ऑफ मास हैज बीन कन्वर्टेड टू दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम. अच्छा, we were looking for that graph, so here we could see यूरेनियम देखो ना बिल्कुल एन पे आ गया, and सही है. have they shown barium? No, not here. But barium का mass कितना है? 56. तो 56. ये 56 यहाँ, यानी समवेयर यहाँ पे आएगा बेरियम, एंड यूरेनियम तो सही उसने है. ऑलरेडी हमने यहाँ पे शो किया हुआ. एंड क्रिप्टॉन का मास कितना था, 36. तो 36 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, समवेयर है. तो मैंने आई थिंक सो अप्रोक्सीमेटली सही पोजीशन से ड्रॉ की थी, इफ वी कुड सी एंड रीराइट, वो एक्चुअली रिमूव हो गया. मैंने अप्रोक्सीमेटली क्रिप्टॉन की वैल्यू यहाँ पे ड्रॉ की थी, देखो एग्जैक्टली यहीं पे बन रही है क्रिप्टॉन की वैल्यू. तो क्रिप्टॉन and barium 56 is coming out to be somewhere here, and uranium will be last one, जहाँ पे डिक्रीज आना स्टार्ट होगा हमारे पास. सही है. uranium. Anyhow, moving on to the next part, suggest two reasons इसका why the मैंने activity.
and the measured count rate may be different. डिफरेंस क्यों आता है हमारे पास? मैं बैकग्राउंड रेडिएशन की है और एक है अब्जॉर्प्शन इन एयर। यस, सो टू रीजंस हो सकती हैं कि देयर माइट बी absorption in air due to the particles present and background radiation. What other options could there be? हम लोग डिफ्लेक्शन। मोस्ट सेफ ऑप्शंस हमारे लिए यही रहती हैं। बाकी हम ये भी कह सकते हैं कि देयर माइट बी सम absorption in the window, counter is not sensitive enough to measure the readings। तीन चार ऑप्शंस और भी बन सकती हैं, but let's stick to the basic ones। We have the graph state the feature from figure 12.1 that indicates random nature of radioactivity। So ये हमारे पास जो curve is not smooth और जो fluctuations आ रही हैं, हाँ, that shows के ये सही है। the fluctuations in the रैंडम graph, नेचर है। रैंडम है। fluctuation in the graph and curve shows the random nature। although एक मार्क्स का तो अगर हम जस्ट फ्लक्चुएशन में मेंशन कर देंगे तो भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे। यूज्ड टू गेट 12.1 to determine the half life of the radioactive isotope in source। तो रेडियोएक्टिव की इनिशियल काउंटेड कितना बन रहा है हमारे पास? मेरा इसका 1.6 आंसर आ रहा है। और ओके, सो इनिशियल काउंटेड हमारे पास कितना बन रहा है इसका? 160। ये पे आप। फ्लक उसने हमें कोई वैल्यू तो नहीं दी हुई स्टार्ट के अंदर। नहीं, ये तो नहीं है, इसमें नहीं है। चले 160 कंसिडर करें, उसका हाफ कितना बनेगा? 80। 80 के ये रिस्पेक्ट ठीक से है, वैल्यू लेकिन कितनी इसमें बन रही इसमें है? वो बैकग्राउंड भी हमें करना है ना। बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे पास कितनी बन रही है? या हम जैसे सीआई में करते थे वो 10 माइनस करके। हाँ, वो नीचे तो वो 10 बन रही है, कितनी बन रही है? 5। 10 बन रही है, अप्रोक्सीमेट 10। 5 10 बॉक्स शो कितना करा है? 5 10 15 20 नहीं, 4 4 की शो करा है। 4 8, हाँ 8। सो बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस करेंगे 180 में से तो 160 में से तो कितनी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास? 150। 160 -10 इक्वल्स टू 150। 150 का हाफ कितना होता है? 75। 70। हाँ जी। और फिर 75, फिर हम 10 ऐड करेंगे और उस उसमें 75 में। बैकग्राउंड रेडिएशन फिर ऐड करेंगे, दैट वुड बी 10। 10 के अगेंस्ट 85, 85 के अगेंस्ट फिर कितनी बन रही है? 1.6। इफ दिस इज 80, ये 84 होगा, तो अगेन वही बात आ जाती है कि 2 के करीब करीब की वैल्यू बन रही है। Let me clear everything and further zoom in। आंसर क्या है वैसे इसका? ये हमारे पास वैल्यू बन रही है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, दिस इज 85 that touches the graph at this point and this goes down to 2 बन रही है। एज फ्लक्चुएशंस हैं तो हम उनसे कहेंगे अप्रोक्सीमेटली 2 तक की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है। ओहो, चलो सही। और अगर हम 180 के से रिस्पेक्टिव कंसिडर करते हैं कि हमारा काउंट रेट 180 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इफ वी गो अप इन द ग्राफ सो वी कुड से कि ये अप्रोक्सीमेटली 175 तक की वैल्यू भी आ रही है हमारे पास, और जी। 160 से बफ ये यहाँ से काउंट रेट हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ये बनता है कितना?
172 बनता है। तो फर्दर अगर हम 172 से स्टार्ट करते हैं तो भी हमें रीजनेबल आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशंस हैं, एग्जामिनर वुड गिव अस एन एज के वैल्यूज के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अच्छा, अब उसने बोला है कि द रीडिंग इन बी वर obtained at room temperature. Second sample of this isotope is heated to a room temperature of 500. The initial count rate at T equals to is the same as that in B. Okay. The variation with time of the counted made from the heated source is determined. State with the reason the difference, if any. हाफ लाइफ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दैट इज अ मैंने रखा है स्पॉन्टेनियस। एक्सटर्नल फैक्टर्स नॉट अफेक्ट हाफ लाइफ। हाँ, तो वही ना, नो चेंज as it's a spontaneous process, and spontaneous process जो है is not affected by external effects. Then next part क्या है हमारे पास? May it count rate for any specific time due to the randomness. Count rate हम लोग predict नहीं कर सकते. Count rate might be different cause it's a random process, मैं वापस सही। cannot be predicted due to the randomness. Then we have what is meant by radioactive. Radioactive क्या होता है? The emission of electromagnetic radiation from the unstable nuclei. And then the next is decay constant. Decay constant हम लोगों ने probability of decay per unit time discuss कर चुके हैं previous part में. Why the emitted beta particles have a range of energies? Cause electrons की energies जो हैं वो क्या होती हैं? Vary करती हैं. So energy during traveling या जब वो emit होते हैं during emission, energy of particle is shared with the neighboring atoms. Sorry, neighboring particle. दैट्स वाई जो बीटा पार्टिकल्स की एमिशन होती है वो रेंज ऑफ उसमें निकलते हैं। जिनकी कोई कोलिजन नहीं हुई उनकी रेंज और होगी, जिनकी कोलिजन हुई मल्टीपल उनकी जो है रेंजेस क्या होंगी, वेरी करेंगी। अब उसने sample of blood contains 1.2 grams of iodine. Determine for the sample of blood the activity of iodine. Let's go up and see if there is any data, any other data is given up. Okay, उसने decay constant की वैल्यू दी हुई है। We have energy, we have mass. Okay. सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे इसके अंदर। केजी में मैच कर लें। मास केजी में करने की जरूरत नहीं है, इट इज 1.2 into 10 raised to power minus 9 divided by 131 times 6.02 into 10 raised to power 23. This would give us the number of moles, और if you want कि आप उसको convert कर लें इसके अंदर, तो that's totally up to you. Let's see इसका क्या आंसर आ रहा है। 1.2 exponent minus 9 over 131 times 6.02 exponent 23. 5.5 into 10 power 12. So नंबर हमारे पास आ गया 5.5 into 10 power 12। एक्टिविटी किसकी इक्वल होती है? A is equals to this vector। इसने हमें काउंट रेट की लैम्डा वैल्यू एन। क्या दी हुई थी? 8.6 into 10 power -2, ये आ गया।
पर डे उसने दिया हुआ है, तो अगर हम लोग सेकंड्स में जाते हैं तो डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600 कर देंगे, टाइम्स 5.5 into 10 to the power 12. This would give us a value of 5.5 into 10 raised to power 6 becquerel. This would be the activity. Clear? जी Then we have the time for the activity of the iodine to be reduced to 150 of the activity calculated. अब उसने टाइम लिमिट हमें दे दिया हुआ है, दैट इज 1/15। यहाँ से एक्सपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा, दिस फैक्टर के बराबर। ठीक है, अब सिग्मा, जी सॉरी, इसकी वैल्यू उसने हमने अभी प्रीवियसली यूज की है। दिस वुड बी इक्वल्स टू -0.086। 10⁻² था ना, तो उसको हम 0.086 पे लिख सकते हैं, और हमें टाइम कैलकुलेट करना है। अगेन रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 50 वुड बी इक्वल्स टू e⁻0.086 into t। log 50 equals to 0.086 into t, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, log 50 over 0.086। So the answer is coming out to be log 50 over 0.086 is equals to 45 days। अब दिस टाइम हम लोगों ने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं किया, वी लेफ्ट इज एज इट इज, बिकॉज ये पर डे की वैल्यू थी। सही है। देन वो मैथ्स वाला क्वेश्चन आ गया दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। अब उस एग्जाम्पल में भी हमने देखा था। अब उसने यहाँ पे बोला है कि one possible nuclear reaction that takes place in a nuclear reactor is given by the equation this that is given। Determine for the nuclear reaction the value of x। x यहाँ पे है हमारे 7 पास, ठीक है। जी 7 है एंड इसका आंसर। बैलेंसिंग अगर हम लोग करें तो बैलेंसिंग के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, 7 व्हाट आर यू सेइंग, कितनी बन रही है, 7 7। ओके, देन उसने कहा शो दैट वन यूनिफाइड इज 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत दफा क्वेश्चन आता है, तो E इज इक्वल्स टू mc² की हम इक्वेशन यूज सही करेंगे। कर लिया आगे चले जाओ। सो m की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 टाइम्स 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। तो ये आता रहता है, तो यही इक्वेशन हमेशा आपको आंसर दे देगी। अच्छा, अब उसने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला हुआ है ना, तो अपने आंसर को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 1.6 इंटू 10 1.6 10 raised to power 13। -13 से। देन हमारे पास उसने बोला है कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज इन दिस रिएक्शन, गिव यू एन आंसर टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। लेट्स गेट बैक टू द टेबल। डेटा हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। यूरेनियम का इसका मास आंसर से कितना कितना 198 दिया आ हुआ रहा है, 235, नो, 235 प्लस, है। सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रहा है, सेड नो। सही हेलो, तो चलें ठीक है। आवाज आ रही है, जी जी आ रही है। मैंने नो कह दिया था उसी टाइम पे। टू थर्टी फाइव अच्छा डॉट वन टू थ्री एंड न्यूट्रॉन का मास कितना दिया हुआ है, 1.00863। ये आ गया, माइनस द प्रोडक्ट्स, तो मोलिब्डेनम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 94.945, प्लस लेंथिनम की वैल्यू दी हुई है 138.955, एंड टू न्यूट्रॉन्स हैं, तो 2 into 1.00863, माइट भी आपने ये वैल्यू मल्टीप्लाई ना की हो उसके साथ, मैंने किया प्लस है ये। 7 into 5.49 into 10⁻⁻4। So this is giving us a value of, hold on, that's a very lengthy value, 235.123
plus 1.0086 and bracket close minus bracket start 94.945 plus 138.955 plus 2 multiplied by 1.00863 plus 7 into 5.49 exponent minus 4. Let me put brackets around this 2 ताकि कैलकुलेटर उसमें कोई इशू ना करे. Okay, hold on. Now this is equals to 0.211 0.21 in 1053. Yes. 0.21053 U and times the value of 935 mega electron volt. So 0.21053 times 934 is giving us ओ मैं 938 से कर रहा था 196.6 mega electron volt. मैंने Sorry, सारा सही किया है, समझ में आ गया. 196.6 को राउंड ऑफ करके 197 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. ओके, सही है. मूविंग ऑन टू suggest that form of energy into which energy calculated B is transformed. किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो? Kinetic energy of the nucleon and eventually into the gamma rays. गामा रे फोटॉन्स. Yes, gamma ray photons and kinetic energy of the particles. Cause 2 पॉइंट्स है तो हमें 2 जस्टिफाई जरूर करने पड़ेंगे. अच्छा जी, अब isn't this the exact equation that is given in the previous हाँ question? जी, हाँ जी, पार्ट ए पार्ट बी सेम है. चलो हम वहां से तो चीटिंग कर सकते हैं. यहाँ पे क्या आ जाएगा? बस छोड़ देना, आगे चले जाएं. हाँ, 7 into 0 - 1 प्लस एनर्जी. बाकी जो अब उन्होंने इक्वेशन 1 यूज, सो वी ऑलरेडी हैव डन दैट. कंप्लीट द न्यूक्लियर इक्वेशन, वो भी हो गई है. 1934 इज वो भी कर दिया है. कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लैंथेनम. ओके, उसने हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू भी दी हुई है, लेंथेनम की वैल्यू भी दी हुई है. अच्छा, जस्ट लेंथेनम की कैलकुलेट करने को बोली हुई है. सिर्फ तो एक का वैल्यू तो कहा है इन्होंने. हाँ हाँ, जी, उसने जस्ट एक का ही बोला, तो वो वैल्यू हमारे पास है. जैसे हमने पहली क्वेश्चन किया था वैसे ही कर लेंगे. यस. तो वो सही है, ये आ जाएगा. अच्छा जी, पहले देख लें लेंथेनम की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने. 138.955 मल्टीप्लाई बाय वन नहीं पॉइंट नहीं, सिक्स पहले सिक्स वन ये तो उसने पूरे न्यूक्लियस की दी हुई है ना. हम लोग पहले उसकी इसको इंडिविजुअल पार्टिकल्स की भी तो निकालेंगे ना. How many protons and neutrons do we see here? 55 proton, 57 proton है. तो 57 times 1.00728 U plus 82 neutrons है is equals to 1.00863 bracket close minus the nucleon binding energy. This is giving us. ऐसे होता है. ओके. हाँ, तो देखो ना, अभी हमने वो एग्जाम्पल के अंदर भी तो हम लोगों ने किया था ना. तो बस उसके ठीक है. अंदर हमारे पास अब माइनस करके आंसर आ रहा है 1.16762. तो माइनस का साइन डिक्रीज को शो कर रहा था, हम उसको नहीं करेंगे, इसको हम टाइम्स 934 कर देंगे. दिस वुड गिव अस अ वैल्यू ऑफ 7.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. Then stating whether binding energy per nucleon you will be greater, equal, less than your answer. तो हमारा ऑलरेडी नेगेटिव का साइन आ रहा है. अच्छा, उसने क्या बोला? यूरेनियम के कंपैरिजन में उसकी एनर्जी क्या है. यूरेनियम. और जैसे ही हमें पता है कि हमने वो ग्राफ के अंदर देखा हुआ है कि वो डिक्रीज आता है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आता है. तो यूरेनियम
तो कम जो होगी बाइंडिंग उनकी। एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो डिक्रीज होती है एज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड. सो यूरेनियम हैज लार्जर न्यूक्लियन नंबर, सो लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स टू एंड प्रोटॉन्स न्यूक्लियन। infinity. And so the relation between binding energy of the nuclear that is consistent with the reaction being energetically possible. यूरेनियम की ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट से। Now, ऐसे so ही। we'll study the relationship between the binding energies of the nuclei. So binding energy of the thorium and helium is greater than the binding energy of the uranium. Isn't this you just said? I might have not उनकी listened कैसे to that. ग्रेटर है? बेटा इन दोनों की मिला के, थोरियम एंड उसकी हीलियम की मिला के, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं, हाँ इज जी। ग्रेटर देन दैट ऑफ यूरेनियम. 234 मतलब प्लस मैंने भी तो 4 ये की करोगे है, तो लेकिन कितना हो उनकी जाएगा? टू हेड कैसे थर्टी ज्यादा एट बनता है? सुन लो ना. 234 प्लस 4 करके 238 हो गया. एंड ये पॉइंट्स को ऐड करोगे तो इट वुड ऐड ग्रेटर देन 5076 बन जाएगी वैल्यू. ओके. एक मिनट में क्या देखते हैं। सो हमारे पास मुझे। बाइंडिंग एनर्जी जो होगी इट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द यूरेनियम, तभी तो ये रिएक्शन हो पाएगा. दैट्स व्हाट दे आर बेसिकली आस्किंग ना. इन पता नहीं, ऑर्डर समझ नहीं फॉर अ समझ आया। रिएक्शन. अरे आपने, आपके पास यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी के से ग्रेटर की एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे तभी तो आपका वो रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा ना. तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं इससे ज्यादा इक्वेट कर रहा फिर? अरे आ नहीं रही. दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग, द स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर दैट इज कंसिस्टेंट with this reaction being energetically possible. So in order for that reaction to be energetically possible, it should be greater than the binding energy of the uranium. That's what I'm अच्छा। saying. Do you अच्छा। get it or still not? थोड़ा बहुत। अरे भाई एक रिएक्शन करना है, ठीक है. उसकी बाइंडिंग एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू की है, ठीक है. जैसे उसने 238 टाइम्स 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम ऑफ द न्यूक्लियस आ गई. ठीक है. अब थोरियम एंड हीलियम जी। की एनर्जी उससे ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं, इन ऑर्डर फॉर दैट रिएक्शन टू बी एनर्जेटिकली पॉसिबल. जी। जी। वही पूछ रहा है वो रिलेशनशिप क्या है उसके अंदर. मीटिंग इज अबाउट टू एंड, सो यू कॉल मी. ट्रेनिंग कहाँ पे है? ओके. The analyst can explain whether the energy of the gamma particles is equal to the energy released in this reaction. तो obviously energy of the gamma photons less than the energy released होता है, क्योंकि not all of the energy is being utilized by the gamma particles, वो बाकी of the nucleus की kinetic energy में भी use होता है. Then उसने हाफ लाइफ बोला हुआ है. हाफ लाइफ हमारे पास क्या होता है जिसमें हाफ ऑफ द एटम्स डिके, टाइम और द टाइम रिक्वायर्ड बाय द एटॉमिक न्यूक्लियर टू डिके टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू. देन उसने प्रूव करने को बोला हुआ है 0.69 ये की मुझे आता है बेसिकली सर। लॉग ये भी मुझे लॉग आता टू की वैल्यू होती है. हाँ, बेसिकली लॉग टू की वैल्यू जो हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में प्रूव किया था, है। जी जी। वही है बेसिकली यहाँ पे. हमने उसको वो करना है. देन उसने एक्टिविटी में मास का पूछा हुआ है. डाटा हमारे पास जो है ए इज इक्वल्स टू एक्टिविटी डिके कांस्टेंट इनटू एन. हमारे पास उसने कैलकुलेट द मिनिमम मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेप्टेबल हैजर्ड, ऊपर देखते हैं कोई वैल्यू दी तो नहीं हुई इसने. ओके, डिके कांस्टेंट की वैल्यू उसने हमें दी हुई है. एन हमें पहले कैलकुलेट करना है. एन डू वी हैव एनी डाटा? हाँ, ये बैक्टीरियल उसने दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है. A equals to decay constant to n, so n would be equals to 200 divided by 2.1 into 10 to the power -6. मतलब इसको रीअरेंज कर दिया हमने, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 9.52 एंड इनटू 10 रेज टू पावर 7. हमें मास कैलकुलेट करना है तो वही मोल वाला रेशियो लगा के 9.52 इंटू 10 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय
क्या वैल्यू दी हुई है उसने हमें? उसका न्यूक्लियर नंबर क्या बन रहा है? 222। टाइम्स 222 divided by 6.02 into 10 to power -3। नॉर्मली ये ग्राम्स में ही होता है, तो हम साथ में 10 to the -3 लगा देते हैं इन ऑर्डर टू वैलिडेट दैट किलोग्राम्स वाली रेशो कंप्लीट करने के लिए। अब ये 9.572 into 10 to the 7, 9.57 exponent 7 times 222 exponent -3 divided by 6.02 exponent 23 is 3.5 into 10 raised to power -7 kilogram. Then हमारे पास क्या आ रहा है? स्टेट ऑफ फुल न्यूक्लियर रोटेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो वो हमें पता है कि वो 4n2 होती है। न्यूट्रॉन हमारे पास कितना होगा? 1n0। एंड देन उसने मास चेंज वही जो हमने किया था अभी पहले, कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के मासेस को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। एंड एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए एमसी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास वो आ जाएगा। And with reference to your answer in B1, comment on the energy of sulfur particles such that the reaction could take place. So mass of product is greater than that of the, अब हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया रिजल्ट्स को, बट अगेन ऑब्वियसली एनर्जी चेंज हमारे पास आ रहा है, तो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स के masses जो हैं वो क्या कर रहे होंगे, वेरी कर रहे होंगे। So alpha particle must have at least this amount of kinetic energy in order to initiate that reaction. बेसिकली उसने अल्फा पार्टिकल की जस्टिफिकेशन मांगी हुई है ना, तो अल्फा पार्टिकल मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी सो दैट वो इनिशिएट कर सके उस रिएक्शन को, जो उसके लिए गिवन रिक्वायर्ड है हमारे पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा 3 reasons why the activity level of copper 6 is not equal to the Mayer counted। पहला पहला तो रीजनिंग हमारे पास गैप बैकग्राउंड रेडिएशन आ जाएगा, एंड रैंडमनेस आ जाएगा हमारे पास, एंड एब्जॉर्प्शन वही जो आपने बात की थी, एब्जॉर्प्शन इन एयर हो सकता है, एब्जॉर्प्शन थ्रू विंडो हो सकता है, काउंटर की जी। सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, ऑल दोज रीजनिंग्स। एंड ओके, नेक्स्ट से पूछा है डिफ्लेक्शन कह सकते हैं। इन, सॉरी, डिफ्लेक्शन। हाँ डिफ्लेक्शंस भी हो सकती हैं, वो अगेन हिटिंग ऑफ द पार्टिकल्स इन द एयर की वजह से डिफ्लेक्शंस भी हो सकती हैं, डिटेक्टर तक पहुंचे ही ना हो। सही है। देन ये हाफ लेवल बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें a is equals to a नॉट एक्सपोनेंट माइनस लॉग 2 टाइम्स, हमारे पास अब कोई भी डाटा गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज, ना हाफ लाइफ दिया हुआ ना टाइम उसने हमें दिया हुआ है, एक्टिविटीज उसने हमें दी नहीं है कि कहाँ से कहाँ जा रही है। तो 1.21 into 10 raised to power 2 divided by 3.62 into 10 raised to power 4 equals to exponent minus log 2 into, एक टाइम उसने हमें दिया हुआ है 42 मिनट्स, यानी टॉप टाइम उसने हमें दिया हुआ है, log 2 into 42/t हाफ लाइफ। ठीक हो गया। अब ये करने से पहले हम उसका वो नेगेटिव वाला फैक्टर ना खत्म कर लेते हैं। एनी हाउ, यहाँ पे हम लोग उसके अंदर रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। देखिए क्वेश्चन की वैल्यू उसने हमें दी है, अ, नहीं। नहीं दी हुई। एक्टिविटी अच्छा बेसिकली ये दी हुई है और टाइम दिया हुआ डिवाइड कर डिवाइड करने से पहले हम लोगों को ये माइनस वाला साइन भी कंप्लीट वो करना है ना, तो ये 3.6 into 10 raised to power 4
over 1.2 into 10 raised to power 2 log is equals to log 2 into 42 over t into 1/2। तो वो रीअरेंज कर देंगे और यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू निकल आएगी। ओके, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।